Dear all, as per commitment, today I am going to start a video series on TCS NQT 2021 Quant part. In this video series, you are going to get say 5 or 7 videos on complete syllabus of TCS NQT. In each video, I am going to discuss 15 questions, and believe me, if you are going to follow this video series, you are definitely going to crack this TCS NQT Quant part. For the rest of the other parts, verbal as well as the coding part, it is going to have some other faculty recording a video for all of you. So let's start TCS NQT Quant first video. As all of you are aware that there are 4 sections in TCS NQT part questions. The first part is quantitative aptitude, 15 questions, 30 minutes, and out of 15 questions, 12 to 13 questions or 11 questions of MCQ type, where 1/3 negative marking will be there, and 2 to 3 questions, maybe 4 questions on fill up the blank type, where there is no negative marking. Then verbal ability English, 15 questions in 10 minutes. The coding part, the programming concept MCQ questions, 12 questions in 20 minutes. Once again, those questions which are in MCQ form, you will have to, there is a negative marking and of 1/3, and in fill up the blanks it is going to be no negative marking. In the English test, you are going to get a closed test, right? There may be changes in the pattern of the test. It used to happen. I am talking in the context of last year paper. And then there is going to be one coding question, and you are going to get 30 minutes to solve that, right? So this is the pattern. Last year TCS NQT pattern, most probably company is going to retain this particular syllabus. If there is going to have any change, we will update you for that as well. So let us start the quantitative aptitude part. The first question is, the sum of 2 natural numbers is multiplied by each number separately. The products so obtained are 2418 and 366. The difference between the number is. नंबर सिस्टम का आसान सा क्वेश्चन. क्या कह रहा है कि ये x है और ये x plus y है. इसको x into x plus y करने पे मेरे को क्या वैल्यू आ रहा है, 2418 आ रहा है. और दूसरा है y into x plus y करने पे मेरे पास 3666 आ रहा है. तो पूछ रहा है कि x और y का डिफरेंस क्या होगा. ठीक है, आसान सा है. आप कुछ मत करो, इन दोनों को सम कर दो. इन दोनों को सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा x plus y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर xy है, yx और एक y स्क्वायर. तो ये x plus y का होल स्क्वायर हो गया. दैट इक्वल्स टू 2418 plus 366. 8 6 14 का 4, 6 1 7 1 8, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 6084 हो गया. ठीक है. अब ये 6084 जो है, ये है हमारा किसी नंबर का स्क्वायर. किसका स्क्वायर है ये है स्क्वायर 78 का. ठीक है. बाकी आप निकाल भी सकते हो. 78 का स्क्वायर मुझे पता है, बाकी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो. सो हमारी x plus y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 78 का स्क्वायर. सो x plus y इक्वल्स टू 78. ये 78 हो गया. अब मुझे ये बताओ कि x plus y 78 है, तो मैं यहां पे डाल दूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी. x into 78 इक्वल्स टू 2418. तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, और y into 78 इक्वल्स टू 3666. तो y की वैल्यू भी हमारी. सो x की वैल्यू यहां आ गई हमारी 31 और y की वैल्यू आ गई हमारी 47. ठीक है. मेरे से डिफरेंस पूछा था. 47 माइनस 31 करेंगे, ये आएगा हमारा 16. तो करेक्ट आंसर हो गया 16. नंबर सिस्टम का एक आसान सा क्वेश्चन. सर सेकंड क्वेश्चन, ये भी नंबर सिस्टम का ही है.
how many numbers of zeros there are at the end of number 28 factorial plus 29 factorial. फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और मैंने, आप नंबर सिस्टम के मेरे वीडियो सीरीज देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको कैसे सॉल्व करना है. सर 28 फैक्टोरियल प्लस 29 फैक्टोरियल में आपसे पूछा कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड. अगर सिर्फ 28 फैक्टोरियल दिया रहता तो आसान हो जाता, 29 फैक्टोरियल दिया रहता तो आसान हो जाता, लेकिन ये सम करके थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो. आप देखना क्या करने वाला हूं मैं. 28 फैक्टोरियल प्लस 29 फैक्टोरियल को मैं 28 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरा 1, और ये क्या हो जाएगा 29, तो ये हो गया मेरा 28 फैक्टोरियल इंटू में 30. मैं ऐसे लिख सकता हूं. अब मुझे 28 फैक्टोरियल में 10 का मैक्सिमम पावर निकालना है, तो 10 का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हम 10 का नहीं निकालते थे, हम किसका निकालते थे, 5 का निकालते थे और 2 का निकालते थे. अच्छा 2 का हमेशा पावर ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम सिर्फ 5 का निकाल लेंगे, तो वही हमारा 10 का भी दे देगा. तो 28 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है, डेसिमल वाला पोर्शन हटाना है, और 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस 1 6. तो 28 फैक्टोरियल में हाउ मेनी जीरोस आर देयर, भाई 6 जीरो होंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है 30 से. अब कोई नंबर है जिसमें 6 जीरो है पहले से, लास्ट के 6 जीरो है, उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 6 प्लस 1, 30 वाला एक और आ गया तो 7 हो गया. ध्यान रखिएगा इसमें 6 भी ऑप्शन है और 7 भी ऑप्शन है, गलती कर सकते हैं. 6 इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 7. आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. x1, x2, x3, x4 are the roots of the equation ax to the power 4 bx cube cx square plus dx plus e equals to 0. Then find the value of 1 minus x1, 1 minus x2, 1 minus x3, 1 minus x4. अच्छा ये क्वेश्चन ना ऐसे भी मैं अलजेब्रा और इक्वेशन का जो क्वेश्चंस होता है पेपर में जो आएगा उसमें दो तरीके होंगे. एक बहुत मजदूरी होगी, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस होंगे, और दूसरा होगा एकदम जादू. तो मैं आपको एक क्वेश्चन जादू से करके सिखाता हूं, ठीक है. सर x1, x2, x3, x4 रूट है किसी 4 डिग्री इक्वेशन का, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4. क्योंकि ये चारों उसके रूट हैं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं. a क्यों लिखा, क्योंकि a टू द पावर a x टू द पावर 4 है. ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आना चाहिए. यही होता है, अगर रूट है, रूट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगा. तो सर दैट इक्वल्स टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. सर एक काम करते हैं, हमें निकालना क्या था, 1 माइनस x1, 1 माइनस x2, 1 माइनस x3, 1 माइनस x4. एकदम स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत दिमाग में. क्या कि अगर x की वैल्यू में अगर 1 कर दूं तो मेरा ये वाला टर्म तो आ जाएगा. तो मैंने फटाक से रख दिया x का वैल्यू 1. तो x का वैल्यू जैसे ये जुगाड़ है, आप कर सकते हैं, जल्दी से हो जाएगा. तो a इंटू 1 माइनस x1 इंटू 1 माइनस x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1 माइनस x4 दैट इक्वल्स टू, अगर x का वैल्यू यहां 1 रखा है तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा. दैट इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e. तो मेरे पास यहां पे a था तो मैं इस a को उधर ले जाऊंगा. मैं लिख नहीं रहा, अगला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा. ये आ गया मेरा 1 माइनस x1, 1 माइनस x2, 1 माइनस x3, 1 माइनस x4, और इधर आ गया a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e डिवाइडेड बाई A. ऑप्शन होगा C करेक्ट है. सर these questions are basically differentiator in the examination. Believe me, अगर ये ट्रिक दिमाग जुगाड़ नहीं आता आपको तो क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे और यही डिसाइसिव हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं सर. क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
so that the digit should not repeat and the second last digit is also even. बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पेपर में छोड़ के नहीं आना इसको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, स्पेशली परमुटेशन का ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स दिए हुए हैं, इससे मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। पहले देख लेते हैं इवन कौन कौन सा है, 6 है, 4 है और 2 है मेरे पास इवन। और बोल रहा है कि सेकेंड लास्ट डिजिट भी इवन होना चाहिए। तो लो भाई, ये बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं इसी तरीके से करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 3 3 6 बन गए, 6 बॉक्सेस हैं, इसको भरने हैं हमें। कैसे भरने हैं? पहला वाला इवन है भाई, इवन नंबर बनाना है ना। इवन नंबर कितने मेरे पास? 3, तो 3 तरीके से हो गया। दूसरा वाला भी इवन बोल रहा है, अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक यूज हो गया इवन, तो यहां कितना बचा? 2, तो ये 2 तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है भाई, ठीक है। अच्छा, इवन वाला 2 यूज हो चुका है, तो एक अभी भी इवन वाला बचा हुआ है। इसके अलावा कौन कौन बचा हुआ है? 1 2 3 4, 4 और नंबर भी है, 4 और 1 इवन अभी बचा हुआ है, क्योंकि 2 ही तो यूज हुआ है, तो 5 बचे हुए हैं। तो ये वाला कितने तरीके से? 5 ये, 4 ये, 3 ये, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा और ये आएगा आपका 720। तो ये था आपको 4 क्वेश्चंस। So move to the next question, question number 5. A basket contains 10 apples and 20 oranges, out of which 3 apples and 5 oranges are rotten. If we choose 2 fruits at random, what is the probability that either both are oranges or both are not rotten? Sir, ये जब भी क्वेश्चन आए either or, तो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। ईदर दिस और दिस, नीदर दिस नॉर दिस, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। फंडामेंटल पता लग गया क्या करना है। चलिए भाई, कह रहा है कि एप्पल कितने हैं? 10, ऑरेंजेस कितने हैं? 20। इनमें से बोला है कि 3 एप्पल जो है वो है रॉटेन, तो नॉट रॉटेन वाले कितने हो गए भाई? 7 नॉट रॉटेन। ऑरेंजेस 20 में से 5 ऑरेंजेस जो है वो है रॉटेन और 15 जो है वो है नॉन रॉटेन, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि पहले तो सैंपल स्पेस कितना होगा, मेरे पास है कितना? 10 एप्पल और 20 ऑरेंजेस, मतलब 30 फ्रूट में से कोई 2 फ्रूट मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे बेस में तो हमेशा 30C2 आएगा, ठीक है जी। चलिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख लेते हैं क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ईदर बोथ आर ऑरेंजेस, हमारे पास दोनों ऑरेंजेस हो। ऑरेंजेस कितने हैं? 20, तो PA इक्वल्स टू हो गया 20C2 डिवाइडेड बाई 30C2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर अब बात करूंगा मैं PB की। PB क्या है भाई? बोथ आर नॉट रॉटेन। अच्छा, नॉट रॉटेन वाले कितने भाई? 15 यहां पे और 7 यहां पे, टोटल नॉन रॉटेन कितने हो गए? 22। इसको मैं लिख सकता हूं 22C2 डिवाइडेड बाई 30C2। ये मेरा आ गया PB। अच्छा भाई, PA इंटरसेक्शन B, भाई ऐसा भी तो होगा कि जो ऑरेंज होगा और नॉट रॉटेन होगा, ठीक है। ऑरेंज है जो नॉट रॉटेन है उसको भी माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये कितना है भाई? ऑरेंज जो नॉट रॉटेन है वो कितने हमारे पास? 15, तो मैं लिखूंगा 15C2 डिवाइडेड बाई 30C2। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है? PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो मुझे इसको और इसको जोड़ना है और इसको घटा लेना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, आंसर आएगा इसका 316 डिवाइडेड बाय 435। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, वो भी आसान है करना। 20C2 22C2 माइनस 15C2 ऊपर रख लीजिएगा, नीचे 30C2 कर दीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे 316 अपॉन 435 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आसान सा क्वेश्चन। मूविंग टू द 6th वन।
सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है अ डीलर मार्क्स आर्टिकल्स एट अ प्राइस व्हिच गिव्स हिम अ प्रॉफिट ऑफ 40%. 5% of the consignment of goods was lost, 20% was soiled and had to be sold at half the cost price. If the remainder was sold at the marked price, what percentage profit or loss did the dealer make on that consignment? मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे आप करते हो वैसे ही करके दिखाऊंगा, कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा और क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा. देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल आसान. सर पहले तो आपको लेना पड़ेगा कि कितने सामान थे. तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं बोलता हूं कि 100 M सामान थे. ठीक है, M में भी नहीं, मैं बोलता हूं 100 सामान थे. ठीक है, अब 100 सामान में से क्या हुआ कि 5% तो चला गया जी, र्यून हो गया. ठीक है, र्यून कह रहा है कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वाज लॉस्ट हो गया. और 25 जो है, 20 जो है वो क्या हुआ है भाई, वो आधे प्राइस पे बिका है. तो टोटल कितना बचा हमारे पास 75. अच्छा, ये 75 सामान जो है हमारा वो बिका है 40% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे. ठीक है, मार्क प्राइस ऐसे किया गया कि 40% का प्रॉफिट मिले. तो लो भाई साहब, इसका प्राइस हो गया. अच्छा, सीपी कितनी हो गई, मान लो एक सामान, हमने तो 100 सामान लिया है, मान लो एक सामान का जो कॉस्ट प्राइस था वो था x, तो 100 का सीपी कितना हो गया 100x. अब ये 100x आपको याद रखना है. ठीक है, कैलकुलेशन में आगे यूज होगा. अच्छा, इसमें से 75 जो सामान था वो कैसे बिका है भाई, 75x प्लस सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, 75x प्लस 75x इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100. ठीक सर, 5 सामान जो था 5%, 100 का 5% वो तो लॉस्ट हो गया, वो तो गया. चलो जी, 20% मतलब 20 सामान जो बचा हुआ है वो कितने में बिका है, तो वो बिका है 20x/2 पे. जितना उसका कॉस्ट प्राइस उसके आधे दाम पे बिका. क्यों, क्योंकि स्वाइल्ड हो गया था, बेकार हो गया था. ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये आपका आएगा 115x. भाई साहब 100 सीपी, 100 सामान का कीमत कितना 100x और सेलिंग प्राइस कितना 115x. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना 15%, सामने से दिख रहा है. 115x माइनस 100x डिवाइडेड बाई 100x दैट इक्वल्स टू 15%. आंसर हो गया इसका 15% प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 7. A and B provide rupees for 52,500 and rupees 17,500 for business capital. B receives 20% of the profits as manager and interest is then paid at 4% on the individual capital and the rest of the profits are divided equally between them. If A receives rupees 3934, what does B receive? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. आसान सा तो नहीं बोलूंगा, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें, तो करना है इसको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, हो जाएगा. तो लेट अस ट्राई. हम शुरू करते हैं. हम पहले मान लेते हैं कि x जो है उसका दोनों को बराबर बराबर मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसने इतने पैसे लगाए, उसने उतने पैसे लगाए और उन पैसों का उनको क्या मिला. एक तो मैनेजर था तो उसको प्रॉफिट मिल गया, 20% का प्रॉफिट मिल गया उसको, और साथ ही साथ दूसरे को, और साथ ही साथ 4% इंटरेस्ट भी मिला उसको 1 साल का. ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट था वो इक्वली डिवाइड हो गया. तो इक्वल अमाउंट जो है मैंने x मान लिया है, प्रॉफिट का इक्वल अमाउंट. तो मैं देखता हूं कि B का टोटल जो है, B's टोटल जो उसको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जो पैसा उसको मिलेगा वो कितना है 20p/100. P बोले तो प्रॉफिट हमारा, P बोले तो प्रॉफिट 20p/100 प्लस 4% उसको मिला है तो 4/100 इंटू कितना पैसा लगाया था वो 17,500 रुपए लगाए थे उसने. ठीक है,
ये तो भाई, और प्लस में x भी मिलेगा क्योंकि x बचा हुआ पैसा जो है वो बराबर बराबर बटा है दोनों को। एज टोटल बताइएगा। ए को तो प्रॉफिट का कोई मैनेजर तो था नहीं, उसमें कुछ है नहीं, उसको तो सिर्फ परसेंटेज मिला है। 4/100 इंटू में कितना पैसा लगाया था उसने, 52,500, और साथ में क्या मिला उसको, x और मिल गया है, इक्वल वाला जो पार्ट था। अच्छा, ये वैल्यू दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि ए ने 3934 रुपीज रिसीव किया, तो ए का जो टोटल अर्निंग था वो कितना हो गया, 3934। तो यहां से हमारी x वाली वैल्यू निकल जाएगी, और ये x की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 1834, 1834, 1834, ये x की वैल्यू आ गई। चलो भाई, अभी हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ भाई, ए और बी का टोटल प्रॉफिट। देखो भाई, बी, ए का तो हमें पता है 3934 प्लस बी का कितना है भाई 20p/100 प्लस 4/100 इंटू में 17,500 प्लस एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो 1834, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, p। टोटल प्रॉफिट तो p माना हमने, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, p है दोनों जगह, इसको फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, और जरूर कीजिएगा कैलकुलेट, मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट। तो यहां से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी 8085। ये आ गई हमारी टोटल प्रॉफिट। हमें ए की प्रॉफिट पता है, तो टोटल प्रॉफिट में से इसको घटा लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बी का पूछा था ना कि व्हाट डज बी रिसीव, बी कितना लेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 8085 माइनस 3934, ये वैल्यू आ जाएगी 4151, ऑप्शन सी करेक्ट है। वीडियो में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप दोबारा से जाके देख सकते हो, तो प्लीज जो समझ में ना आए उसको आप दोबारा से जाके देख लेना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेंदी था ये, थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकता हूं मैं। टीसीएस में क्वांट का पेपर मुश्किल आता है, इसलिए ये क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। इनमें से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज अगर ग्रह नक्षत्र सही चलते रहे तो मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा और जरूर से कीजिएगा, और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। A cask contains a mixture of 49 liters of wine and water in the proportion 5:2. How much water must be added to it so that the ratio of wine to water may become 7:4? एक क्वेश्चन मिक्सचर लिगेशन का तो आना ही आना है हर एग्जाम में, ठीक है। तो लेते भाई, क्या बोला है कि पहले था 5:2, 5:2 था, इसको जोड़ दे तो क्या बनेगा 7। ये 7 नहीं है, ये कितना है भाई 49 है, ये दिया हुआ है पहले से 49 है। अच्छा, 7 से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करूंगा और इधर भी करूंगा। मिक्सचर इरिगेशन की पुरानी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सर नीचे आ जाइए, बनाना क्या है मुझे 7:4 बनाना है। ये क्या था हमारा, ये था वाइन और ये था वाटर, ठीक है। 7:4 बनाना है। अच्छा, एक बात बताइए, उसने मिलाया क्या है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो अब जो भी पानी मिला होगा तो मिक्सचर की वैल्यू तो चेंज हुई होगी, लेकिन वो किस कारण से चेंज हुई होगी, वाटर के कारण चेंज हुई होगी। तो वाइन तो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, जो पहले जितना था उतना ही अभी भी वाइन होगा, यस और नो। चेंज आएगा सिर्फ वाटर में, और इससे मिक्सचर में टोटल चेंज आ जाएगा। तो सर मुझे ये 5 × 7 35 आएगा, मुझे इसको बराबर करना है, इन दोनों को इक्वल बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा वाइन जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ऐड नहीं किया गया वाइन, वाइन तो उतना ही है। तो इसको इक्वल अगर बनाना है हमें, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 35 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो इंटू 5, यहां भी इंटू 5, ये कितना था 7 4 11 गुने 5, ठीक है। सर ये दोनों बराबर हो गए, बोला गया कि कितना पानी मिक्स किया जाए। यहां कितना पानी है 14, यहां कितना है 20, तो यहां 20 पानी, यहां 14 पानी, 20 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा 6। तो 6 = 6 लीटर पानी आपको मिलाना था, तो ये वाला रेशियो बन के आ जाता। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, ये 49 है, ये 55 है, 55 - 49 ये भी 6 है,
ठीक है, तो वो 6 लीटर पानी मिलाने से हमारा टोटल भी 6 लीटर से बढ़ गया, तो आंसर हो गया 6। मूविंग टू द नेक्स्ट, 9th वन, रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ A, B and C लास्ट ईयर वाज 3:4:5. The ratio of their individual incomes of the last year and this year are 4:5, 2:3 and 3:4 respectively. If the sum of their present income is rupees 98500, then find the present income of B plus C. भाई साहब ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में जरूर मिल जाएगा, शानदार क्वेश्चन है और आपको मैं जैसे समझाऊंगा अच्छे से समझ में भी आएगा। सर रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A, B, C लास्ट ईयर वो देखता हूं मैं, पहले लिखता हूं A:B:C is 3:4:5। ये हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, ठीक है। इंडिविजुअल दिया हुआ है लास्ट ईयर इज टू करेंट ईयर, इसका रेशियो दिया हुआ है। A का दिया हुआ है 4:5, 4:5, B का दिया हुआ है 2:3 और C का दिया हुआ है 3:4। सर आपका लास्ट ईयर का बात चल रहा था ABC का, यहां पे 4:2:3 दिया हुआ है और यहां पे 3:4:5 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो A4:2:3 का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा 12। अब मैं सबको 12 से मल्टीप्लाई करके बराबर करने की कोशिश करता हूं। तो इसको मैंने बराबर कर दिया 12, इसको 12 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा A का लास्ट ईयर का इस साल का, B का लास्ट ईयर का और इस साल का, और C का लास्ट ईयर का और इस साल का। इससे मुझे इस साल की वैल्यू आ जाएगी सामने, करंट ईयर की आ जाएगी। तो A का ये 36 है, होना कितना था रेशियो, 4:5 में होना चाहिए था A का। अच्छा ये 36 है, इसको भी 36 बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर वाला है, हमारा ये भी लास्ट ईयर है। तो इसको 36 बनाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 9 से इसको किया तो 9 से इसको भी करेंगे, ओके। सर B का कितना है भाई, 2:3 दिया हुआ है। अच्छा ये हमारा कितना हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये हमारा 48, अगर ये 48 है तो ये तो लास्ट ईयर का है ना B का, तो इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 24 से, तभी तो 24 दूनी 48 होगा। इसको 24 से मल्टीप्लाई करने पे 48 मिल रहा है मुझे, तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। इसी तरीके से यहां हम C का ले लेते हैं। C का हमारा 3:4 रेशियो, कब का, इस साल, लास्ट ईयर से इस साल का। लास्ट ईयर ये वाला कितना है भाई हमारा 60 है, अगर ये 60 है तो इसको भी 60 होना चाहिए। ये 60 होने के लिए मुझे करना है 20 से मल्टीप्लाई, 20 से इसको किया है तो 20 से इसको भी करेंगे। तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, इस साल का ABC का रेशियो आ चुका है आमदनी का। तो ये भैया लो करंट ईयर का हमारे पास मामला आ चुका है। वो कितना कितना है भाई, A:B:C, ये हमारा 45, ये हमारा 24×3 = 72 और ये 20×4 = 80। ये मेरे करंट ईयर का रेशियो आ गया है इनकम का। कह रहा है कि सम जो है इनका करंट ईयर का वो है 98500। भाई क्या करें, 45x + 72x + 80x = 98500। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है, 98500, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 500। आपसे पूछा क्या है भाई, B और C की करंट ईयर की इनकम पूछी है। B और C क्या था मेरा, 72x + B + C is +80x which is 152x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 152 × 500, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 76000। ऑप्शन में होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। शानदार क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट,
speed of railway engine is 42 km per hour when no compartment is attached, and the reduction in speed is directly proportional to the square root of the number of compartments attached. If the speed of the train carried by this engine is 24 km per hour when 9 compartments are attached, the maximum number of compartments that can be carried by the engine is. Believe me, ये पेपर में आ जाए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ के ही बच्चा छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, देखिएगा बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं कह रहा है 42 किलोमीटर के स्पीड से इंजन चल सकता है, और जैसे जैसे कंपार्टमेंट उससे जुड़ता जाएगा, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के रूट अंडर से उसकी स्पीड घटती जाएगी। ठीक है, तो भाई 9 कंपार्टमेंट लगाने पे 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, घट गई। तो हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं 42 माइनस हमारा क्या हुआ है भाई, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जुड़ने से स्पीड घटा है, तो मैं लिख सकता हूं कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं रूट अंडर 9। किसी को दिक्कत भाई, नंबर एक के कांस्टेंट निकालना जरूरी है, ठीक है ना, तभी तो हम कंपार्टमेंट बढ़ाएंगे, और हम क्योंकि प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो हम हमारा वैल्यू पता लग जाएगा। तो 42 माइनस के रूट 9 से दैट इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, हमारा 24 हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं इस वैल्यू निकाल सकता हूं के की, और ये के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, के की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 42 किलोमीटर पर आवर से तो चल रहा था इंजन, कितना इंजन मैक्सिमम वो खींच सकता है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मैं मानता हूं कि ये इंजन जो है वो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हैं, मैक्सिमम लिमिट, कि इसकी स्पीड 0 हो जाए, इतने उसमें कंपार्टमेंट लग जाएं कि वो उसका स्पीड 0 हो जाए। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 42 माइनस के इंटू रूट एक्स। एक्स माना मैंने टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, जिसको ऐड करने से इंजन जो है वो आगे नहीं बढ़े, स्पीड उसकी 0 हो जाए। दैट इक्वल्स टू हाउ मच, 0। सर के का वैल्यू निकाल चुके, जो कांस्टेंट है हमारा वो निकल चुका है, प्रोपोर्शन को जो नंबर में हमने चेंज किया था, 42 माइनस 6 रूट एक्स दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, और ये x की वैल्यू आएगी हमारी 49, 42। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो 49 कंपार्टमेंट्स अगर जुड़ जाएं तो इंजन खिसकेगा ही नहीं, उसकी स्पीड हो जाएगी 0। लेकिन ये पूछा कि मैक्सिमम कितना लग सकता है कि वो खींच सके। अब देखिएगा ऑप्शन में 49 दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है, ट्रैप है, फंसना नहीं है। वो खींच सके तो भाई 49 से एक कम कर लेते हैं, आधा तो कंपार्टमेंट होगा ना, तो एक अगर कम कर दें तो उतना मैक्सिमम कंपार्टमेंट है जो इंजन खींच सकता है। तो आंसर हो जाएगा 48। दिस इज रियली अ जेम ऑफ अ क्वेश्चन। अगर ग्रह नक्षत्र सही रहा तो शायद आपको पेपर में मिल जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट। B takes 12 more days than A to finish a task. B and A start this task and A leaves the task 12 days before the task is finished. B completes 60% of the overall task. How long would B had taken to finish the task if he had worked independently? इतनी बार टास्क लिख दिया है कि आदमी ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ दे। Anyway, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आता है, और TCS को टाइम एंड वर्क कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो एक नहीं कई बार 2 क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस यही कहता है। तो अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को। सर मान लेते हैं कि ए काम करेगा x डेज में, ठीक है, इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको, और बी को कितना लगेगा भाई 12 प्लस एक्स। बी और ए दोनों साथ में किया था, ए काम छोड़ के भाग गया, लीव्स द टास्क 12 डेज बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। बी तो काम करते रहा, ठीक है ना, तो बी को लगा है 12 दिन ज्यादा काम करने में। अच्छा, बी टोटल काम का 60% किया है, तो बचा हुआ पोर्शन किसने किया है, ए ने। कितना पोर्शन, 40%। अच्छा, ये दोनों बी का 60% का काम और ए का 40% का जो काम है, ठीक है ना, उसका डिफरेंस क्या है,
12 दिन का, क्योंकि बी जो है वो 12 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लिख सकता हूं, बी के काम का 60% माइनस ए के काम का 40%। ए ने 40% काम किया, बी ने 60% काम किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 12 डेज। 12 दिन दोनों बी ने एक्स्ट्रा काम किया, तो हम ऐसे इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक सर, बी कितना है 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 दैट इक्वल्स टू 12। सर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है, मैं कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दे रहा हूं, आप जरूर कर लीजिएगा, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 24 डेज। तो a का आ गया 24 डेज, तो b का कितना आ गया भाई 36 डेज। अगर इंडिविजुअली अगर b काम करता, पूछा है ना हाउ लॉन्ग वुड बी हैव टेकन टू फिनिश द टास्क ही हैड वर्क इंडिपेंडेंटली, अकेले खुद से काम करता तो कितने दिन में कर लेता 36 दिन में। आंसर सर इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और ये मैं क्लासेस में हमेशा बताता हूं, एप्टीट्यूड के मोर देन 50, 60 और इवन 70% क्वेश्चन कैन बी सॉल्व थ्रू ऑप्शंस। और ऑप्शन से करने वाला जो बच्चा होता है वो बहुत दिमाग वाला होता है, और ऑप्शन से किया हुआ क्वेश्चन हमेशा करेक्ट ही आंसर देता है, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। मैंने क्या किया, बोला कि भाई बी को कितना दिन लगेगा, मैंने इनमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा लिया। अच्छा मेरे पास आंसर 36 आ चुका है, तो मैं 36 जरूरी नहीं लूंगा, मैं 48 भी ले सकता था। चलो 36 ले लेते क्योंकि आसान होगा समझाने में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 48 ही लेंगे, तो अगली बार 36 ले लेंगे। 48 से अगर आंसर नहीं आएगा तो 36 से आ जाएगा। सर बी को अगर 36 लग रहा है, ठीक है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है, तो भाई ए को कितना लगेगा 24, हाँ या ना। अच्छा चलो देखना, B का 36 है, 60% टाइम लगा रहा है, तो 36 का 60% कितना होगा भाई, और 24 का 40% कितना होगा। सर इसको कट कर दिया, ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, चलिए ठीक है, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 108 बटे 5, ठीक है। और 24 का 40% देख लो भाई कितना हो रहा है, 24 का 40% हो गया हमारा, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 24 दूनी 48, 48 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। हो गया 108 बटे 5, ये हो गया 48 बटे 5, इसको माइनस किया तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 12, और ये आना चाहिए था 12। मतलब हमारा एक क्रॉस चेक हो गया कि हमने जो 36 लिया था वो सही है, तो 36 इस तरीके से आप आंसर मार्क कर सकते हो। इतना इक्वेशन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a square drawn inside a square PQRS of sides 4 cm by joining midpoints of the sides PQ, QR, RS, SP. Another square is drawn inside ABCD. Similarly, this process is repeated in finite number of times. Find the sum of the area of all the squares. ज्योमेट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन, हालांकि ये ज्योमेट्री नहीं है, आगे देखिएगा क्या है। सर मैं पहले एक स्क्वायर बना लेता हूं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसके अंदर कुछ इस तरह से स्क्वायर बनना है, आपको मानना है कि ये सब स्क्वायर ही बन रहा है। ये था हमारा PQRS और ये बना हमारा ABCD। सर इस वाले का ना दिया हुआ है डायमेंशन, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर वाला भी 4। मिड पॉइंट से बना रहे थे, तो ये हो गया हमारा 2, ये भी 2, तो इसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी हो गई भाई, PQ की लेंथ हमारे पता है भाई, PQ हमारा था 4, AB हमारा हो गया रूट अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोले तो 2√2 आ गया, ठीक। अच्छा इस ABCD के अंदर भी स्क्वायर बना हुआ है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ठीक है, और ये आगे सिलसिला जारी रहेगा, तब तक बना इनफाइनाइट टाइम्स करना है। लो भाई इसको मान लेते हैं MNOP, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है 2√2, तो ये हो गया √2 और ये हो गया √2,
तो मुझे इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो भाई mn की वैल्यू निकाल लो। mn की वैल्यू आ गई रूट अंडर ऑफ रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब बोला है कि इसके एरिया का सम बताओ इनफाइनाइट टाइम्स जो बच जाएगी। लो भैया, पहला वाला जो PQRS है उसका एरिया कितना हो गया 4 का स्क्वायर, दूसरे वाले का 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हो गई 16, ये 8, ये हो गया 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सामने से देखने से लग रहा है ये क्या है GP। ठीक है, अब GP लगा देते हैं भैया इसमें फॉर्मूला। इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होता है सम a/1 माइनस r होता है। r कितना हमारा 1/2, 8/16 1/2, a कितना दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, बोले तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर पेपर में आने लायक क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट। स्पीक्स ट्रूथ 40% of the time and Lakshman speaks truth 60% of the time. Percentage of cases Ram and Lakshman are likely to contradict each other in stating the same fact. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि TCS में 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मतलब उसमें ऑप्शंस नहीं दिए होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं और ये आसान होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। सर कह रहा है कि राम जो है वो 40% टाइम सच बोलता है, तो चलो भाई राम का मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करेक्ट सही बोलने का परसेंटेज हो गया 40/600, बोले तो 20 दूनी 40 और 20 25 और 2/5। अच्छा राम अगर झूठ बोले तो PA' झूठ बोले तो 1 माइनस 2/5, बोले तो 3/5। ठीक है सर, लक्ष्मण जो है वो जब सच बोलेगा तो उसकी परसेंटेज कितनी है 60/100, बोले तो 3/5। लक्ष्मण अगर सच नहीं बोले झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3/5, बोले तो 2/5। अच्छा मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि एक दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये सच बोल रहा है तो इसको झूठ बोलना पड़ेगा PB', ठीक है, प्लस अगर ये झूठ बोल रहा है तो उसको सच बोलना पड़ेगा PA' इंटू PB। मुझे ये निकालना है, ये सच बोले ये झूठ बोले, ये झूठ बोले तो ये सच बोले, तभी तो एक फैक्ट के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, दोनों निकाल लेते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B' क्या है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A' कितना है भाई A' देखिए A' 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है हमारा ये B था, ठीक है 3/5। ये हो गया 2/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 3/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4/25 और ये हो गया हमारा 9/25 विच इक्वल्स टू 13/25। 13/25 है। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए मैं 4 से इधर और 4 से ऊपर, तो ये हो गया 52 डिवाइडेड बाय 100, बोले तो 52% टाइम ऐसा होगा जब हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे राम और लक्ष्मण एक दूसरे को। तो आंसर हो गया हमारा 52% टाइम। ठीक है, जल्दी से अब 14वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्विन ब्रदर्स लव एंड कुश रोट द TCS NQT टेस्ट while love scored 45% and got 4 marks below the cutoff and kush scored 60% and got 8 marks above cutoff and got selected for interview. What was the maximum marks in their test? अब देखिए भाई मुझे मैक्सिमम मार्क्स तो पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूं मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स 100m। जानबूझ के 100m लिया है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी क्योंकि परसेंटेज में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो 100m में से अब मैं बात कर रहा हूं लव के स्कोर का, तो लव ने कितना किया है 100m इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100, बोले तो 45 मार्क्स 45m मार्क्स लेके आया वो। और लव का ये हो गया, कुश का कितना है भाई 100m इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 100, बोले तो
100 से 100 कट गया, 60m लेके आया है कुश, ठीक है। लव का 45m, कुश का 60m। अब मुझे इक्वेशन बनाना है, ये इसका कट ऑफ से कितना रह गया था पीछे, 4 मार्क्स पीछे रह गया था, राइट। सो 45m इक्वल्स टू, अगर कट ऑफ x था तो x माइनस 4, और दूसरा वाला 60m लाया जब, तो ये क्या हुआ, कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा, ठीक है। अब मेरे पास इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर दीजिएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 5m इक्वल्स टू, मेरे पास आ गया 4, x से x कट जाएगा, इसमें से इसको घटा लिया, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा लिया, 5m इक्वल्स टू 4। मैंने माना कितना था, 100m, इसको 100m बनाना है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी 20 से, तो 100m इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 80। तो मैक्सिमम मास कितना है हमारा, 80, आंसर आ गया 80। इक्वेशन का छोटा सा क्वेश्चन। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। How many terms of the series -12, -9, -6 must be taken that the sum may be 54? Last question, easy सा, सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहा है कि -12, -9, -6 ऐसे ही डॉट 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 जाएगा, कितना ऐसा ले नंबर कि ये 54 आ जाए। आपको सामने से दिख रहा है कि ये सिंपल सा एक एपी है जिसकी ए है -12, डी है 3 और मुझे निकालना है n, ठीक है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मेरा सम दिया हुआ है 54, n दिया हुआ, n हमें निकालना है n/2, ये हो गया 2a होगा मतलब 2 इंटू -12 प्लस n-1 इंटू डी हो गया हमारा 3, ठीक है। मैं इसमें आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। यहां से आप n की वैल्यू निकाल लीजिएगा और ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक मत बनाइएगा, n इंटू n-3 के फॉर्म में, n-9 के फॉर्म में आ जाएगा। मैं कर ही देता हूं एक बार को, 54 इक्वल्स टू n/2 इंटू में -24 प्लस 3n-3, ठीक है। ये मेरा चला गया, ये 54 इंटू 2 कर देता हूं, ये n इंटू हो गया, मेरा हो गया ये 24, 3n-27, इसको मैं फर्दर 3 कॉमन ले लिया, 3n इंटू में n-9, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 दूनी 36, 36 इक्वल्स टू n इंटू n-9। मैंने यही बोला था कि क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, आपको यहाँ से दिख रहा है ये 12 है, 12 माइनस 9 करेंगे 3, 12 गुने 3 36 हो जाएगा, n की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट TCS NQT क्वांट पेपर। बहुत ही मैराथन राउंड था। देखिए भाई, क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, टाइम भी आपको ज्यादा देते हैं, मेरे को थोड़ा और टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। अदरवाइज ये क्वेश्चंस 15 के 15 क्वेश्चंस 30 मिनट में बहुत आसानी से हो सकते हैं। ये हमारे चैनल का डिटेल है, अभी थोड़ा दिख रहा होगा, बाकी आप अगर एक्सप्लोर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। मैं, मेरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है आप सब लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, जॉब दिलवाने के लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्रमोट कीजिए अपने कॉलेजेस में, अपने दोस्तों से, अपने जूनियर्स से, अपने सीनियर्स से, जिनको भी ये सीखने के लिए चाहिए उनसे शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर